Now, let's start with limits. The first thing we need to understand is, now for example, if it is given as limit x tends to 0 of 7x square minus 5x plus 1. Imagine this is the question, that is limit x tends to 0, 7x square minus 5x plus 1. This is the basic understanding that we have of limits. हमको कुछ नहीं करना है. My denominator is not becoming 0. So what I am supposed to do is, this will become 7 into 0 square minus 5 times 0 plus 1, which will become 0 minus 0 plus 1 and is equal to 1. So basically limit exists, and when the limit exists, मेरा entire जो भी quadratic equation था उसका आंसर 1 आ गया. Why are we able to substitute directly? Because बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज माई डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, एंड सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 आई हैव डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज फॉर दिस. समझो, मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus b upon cx plus d. Now I will first check, is my denominator becoming 0? I'll substitute x का value as 0. Now since I have substituted x का value as 0, मुझे देख के पता चल रहा है कि मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा. सो नथिंग डूइंग, a टाइम्स 0 प्लस b अपॉन c टाइम्स 0 प्लस d, and the answer will become b upon d. That's it. And the answer will become b upon d. So what we do is, nothing, we just have to substitute the value, and then the value will become nothing but b upon d, because मैंने directly x के जगह value substitute 0 कर दी. The next part, third one. The question says कि if I have, हाँ चलो ये ले लेते हैं, limit x tends to 2, limit x tends to 2, x square plus 5x plus 6 upon 2x square minus 3x. अब देखो ध्यान से, I will check if my denominator is becoming 0. अभी मैंने x की जगह 2 डाल दिया. अगर मैंने x की जगह 2 डाल दिया, this will become 8. 8 minus 6, my denominator is not becoming 0. You have the luxury of directly substituting x का value as 2. So this will become 4 plus 10 plus 6 upon 8 minus 6, which will become 1620 by 2. And the answer is 10. Has everybody understood this? Anybody has any doubts? So basic understanding, basic introduction to limits. So what we do is we check that basic understanding is कि it should follow all rules of mathematics. रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए. यहाँ पे कहीं पे भी रूट नहीं था, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि डिनोमीटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. एंड डिनोमीटर 0 ने हम कुछ नहीं किया है, हमने, बिकॉज x टेंड्स टू का मतलब होता है इट इज सो क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2. सो इफ इट satisfies all the condition, we just substitute x का value as 2 and we get the answer. Has everybody understood this? So now we start with the first type. अब first type क्या होता है? If I have to tell you that, we will start with factorization, splitting the middle term. Okay, factorization होता है. It can be quadratic upon quadratic, it can be linear upon quadratic, it can be quadratic, and we have done this in relations and functions. Quadratic upon quadratic, linear upon quadratic, quadratic upon linear, cubic upon cubic. So let's take the first question. Okay, मेरा first question है L is equal to, if I take a very basic understanding of the question कि समझो, this is L is equal to limit x tends to 1, x square minus 1 upon x minus 1. Basic stuff. Okay. Now सबसे पहले I'll check, is my denominator becoming 0? Yes. तो मैं क्या करूँगा, I have to make sure कहीं या तो x minus 1 कट हो जाए, या तो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो 0 ना बने. So I look at the numerator. Numerator थोड़ा जाना पहचाना numerator लगता है. It looks like a square minus b square. So I'll write it as x minus 1, x plus 1 upon x minus 1. Anybody has any doubts here? Has everybody understood this? तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x minus 1, x plus 1 लिख दिया. Now listen guys, ये कट हो गया, जैसे ही कैंसिल हो गया. When I write again limit x, I'm sorry, x tends to 1, this will become x plus 1. अब ना
whenever you cancel something, एक reason लिखते हैं. The reason is since x tends to limit, x is not equal to limit, and that limit is not equal to 0. मतलब what I am trying to say is कि जो मैंने cancel किया वो 0 नहीं है. क्यों 0 नहीं है? क्योंकि मैं 0/0 कभी cancel नहीं कर सकता. So the reason that we write it, x tends to limit, it is very close to that limit, but it is not equal to that limit, and hence x minus 1 will not be equal to 0. And what we do is यहाँ पे, now that my denominator is not becoming 0, this will become 1 plus 1, and the answer is 2. So what I have done, I have factorized. मैंने कोई formula use किया, मैंने factorize किया, वो cancel हो गया, and I have got the answer. Has everybody understood this? And the reason I have written is x tends to limit, x is not equal to limit, and x minus limit is not equal to 0. Remember this. मैंने number नहीं लिया, मैंने क्या बोला है? x tends to limit, x is not equal to limit, and x minus limit is not equal to 0. Next, चलो, I will take a question. The question says कि ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x tends to 1, x minus 1 upon 2x square minus 7x plus 5. Okay, 2x square minus 7x plus 5. मैंने 1 डाला, और 1 डालने के बाद I realized that my denominator is equal to 0. Can anyone tell me what should I do for the denominator? Is there any possible way? What can I do for the denominator? What will be the factors? 2x square minus 2x minus 5x plus 5. Very good. Is equal to limit x tends to 1. This will become x minus 1. This will become, अगर मैंने 2x कॉमन ले लिया तो x minus 1 minus 5 x minus 1. Has everybody understood this? तो क्या हो जाएगा? Is equal to limit x tends to 1. क्या हो जाएगा guys? x minus 1 upon x minus 1 2x minus 5. कुछ कट हो रहा है guys? कट हो गया. मैंने क्या बोला? कट होने के बाद we write whatever is left. Okay, this is for your understanding, to understand the chapter कि basic types कैसे हैं, क्या हैं. So this will become 1 upon 2x minus 5. आता है रीज़न लिखने का चांस. मैं बोलता हूँ x tends to limit, x is not equal to limit, and x minus limit is not equal to 0. देखो 7. अच्छा, लिमिट कैन बी एनीथिंग. ये तो लकीली दोनों जगह 1 आ गया. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हाफ हो सकता है, रूट कुछ भी हो सकता है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ x tends to limit, x not equal to limit, x minus limit not equal to 0. Now let's check. Guys, is my denominator becoming 0? Can I substitute x का value as 1? Yes, no. क्या हो जाएगा बताओ? 1 upon which is what? minus 1/3. अब देखो, क्वाड्रेटिक था, ये था क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ये था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. तो अब ये पता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी रहेगा तो भी वी कैन डू दिस काइंड ऑफ सम्स, कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. सो इफ आई टेक से फॉर एग्जांपल एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1. ओके, एक क्वाड्रेटिक सम लेंगे हम लोग. चलो एक से लेते हैं, चलो एक क्वाड्रेटिक लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 2, 7x square minus 11x minus 6 अपॉन 3x square minus x by 10. तो हर एक टाइप कर लेते हैं. पहले हम लोगों ने किया क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, फिर लिया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अब ले लिया हम लोग क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. इसके बाद लास्ट सब हम लोग करेंगे क्यूबिक अपॉन क्यूबिक. ओके, नाउ I know for sure that the denominator is becoming 0. How? This will become 4 times 3 is 12. 12 minus 2 is 10, and 10 minus 10 is 0. So I am left with no other option but to factorize. Can you tell me how can I factorize the numerator? Bolo. How can I factorize the numerator? 14 and 3. Denominator
6 and 5 plus 6 and minus 5 कि minus 6 and plus 5? Perfect. Now let's see what we will get. और देखो x tends to 2 है यहाँ पे, तो 7x x minus 2 plus 3x minus 2 upon 3x x minus 2 plus 5 x minus 2, which will become limit x tends to 2 7x plus 3 x minus 2 upon 3x plus 5 x minus 2. ये देखो x minus 2 निकल गया. Now as I told you, we will just substitute whatever is left after this. So this will become limit x tends to 2. This will become 7x plus 3 upon 3x plus 5. और हम लोग एक रीज़न लिखेंगे. Since x tends to 2, x is not equal to 2, x minus 2 is not equal to 0. This will become 14 plus 3 upon 6 plus 5, 17 upon 11, and that is your answer. Has everybody understood this? तो हम लोग कुछ नहीं कर रहा. We are just factorizing whatever is cancelling, we cancelling it out, and last में हम लोग सिर्फ x की जगह 2 डाल रहे. So since everyone is very comfortable with factorization, this concept becomes very easy. Last sum of this type, okay, थोड़ा लंबा चलेगा. I will just show this to you, okay. अभी ना इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ before we go ahead. L'Hopital's मतलब all I have to do is, देखो ये ना मुझे चेक करना पड़ेगा कि what is the answer that I'll get. यहाँ पे चलो easy वाला लेते हैं पहले. Let's check this, okay. इसका एग्जाम्पल लेते हैं. कैन यू टेल मी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x. देखो ध्यान से, आई गिव यू एक सबसे सिंपल एग्जांपल, वहां पर लिख लेता हूँ. चलो कोई बताएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है गाइस? 2x माइनस, कैन यू टेल मी व्हाट इज 1 का डेरिवेटिव? वेरी गुड. अपॉन व्हाट इज x का डेरिवेटिव? माइनस 0. व्हाट इज x का वैल्यू? Did you guys understand this? Same here also. इसको अलग डिफरेंशिएट करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, ये डायरेक्टली गेट द आंसर. लेट्स चेक. इसको ध्यान से देखो, इसका देखो क्या आएगा. कैन यू टेल मी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या रहेगा? डायरेक्ट बताओ. चलो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 अपॉन, बोलो 4x माइनस 7. परफेक्ट. गाइस x का वैल्यू क्या है? 1. तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, so the same sum using L'Hopital's, that obviously in the due course I'll be teaching you, and this is how you do for L'Hopital's. अब देखो ना ये कर लिया, सेम, एग्जैक्टली सेम. डायरेक्ट बताओ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बताओ क्या रहेगा? न्यूमरेटर का 14x माइनस 11 अपॉन 6x माइनस 1. x का वैल्यू क्या है? 2. चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा? 28 माइनस 11 कितना होता है? अपॉन, easy. That is why it becomes easy. नाम है L'Hopital's. ठीक है. Now next example. L is equal to limit x tends to 1, x raised to 4 minus 3x cube plus 2 upon x cube minus 5x square plus 3x plus 2. ठीक है. एक काम करते हैं, चलो थोड़ा नॉर्मल सम ले लेते हैं हम लोग. एक्स क्यूब minus 8x square plus 45. x cube minus 8x square plus 45 upon 2x square
minus 3x minus 9. Okay, let's try to understand this sum. X square. अब डिनोमिनेटर इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो एक ही यहाँ पे लिया है जहाँ पे न्यूमरेटर इज द क्यूबिक पार्ट एंड डिनोमिनेटर इज द क्वाड्रेटिक पार्ट. ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सम ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 45. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द न्यूमरेटर. लेट्स ट्राई द सिंथेटिक डिविजन. ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो. क्यूबिक मतलब तेरा 4 टर्म्स, कांस्टेंट, एक्स टर्म, एक्स स्क्वायर टर्म एंड एक्स क्यूब टर्म, 4 टर्म्स है. क्वाड्रेटिक में क्या होता है? कांस्टेंट, एक्स टर्म एंड एक्स स्क्वायर टर्म. क्यूबिक में 4 टर्म्स होते हैं, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होते हैं, लीनियर में 2 टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट में 1 टर्म होता है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 टर्म्स है, एक टर्म 0 है, बट लिखना सब कुछ है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लिमिट दैट इज गिवन? x टेंड्स टू, वो यहाँ पे आएगा. कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब? 1. Can you tell me what is the coefficient of x square? What is the coefficient of x? And constant? 45. कितने लोगों ने समझा? मैंने क्या बोला? 4 टर्म्स है ना, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट. x क्यूब, x स्क्वायर, x है नहीं, छुपा हुआ है. छुपा क्यों है? बिकॉज इसका कोएफिशिएंट 0. स्टेप नंबर 1, द फर्स्ट टर्म कम्स डाउन एज इट इज, तो ये 1 हो जाएगा. गाइस, what is 1 multiplied by 1? 1. What is 1 multiplied by 1? 1. What is minus 8 plus 1? Minus 7. What is minus 7 multiplied by 1? Minus 7. बराबर है ना? एक मिनट, लिमिट एक्सटेंड्स टू, रुको, माई क्वेश्चन इज रॉन्ग. लिमिट 1 नहीं है, द लिमिट इज 2. Sorry guys, the limit is 2. Limit 2 है, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया था. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, यही ना क्वेश्चन. हाँ, एक्सटेंड्स टू 2x स्क्वायर, एक्सटेंड्स टू x क्यूब, एक्सटेंड्स टू 3 है. लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 है. 3. Let's start again. The first term comes down as it is. Guys, what is 1 times 3? 3. What is minus 8 plus 3? What is minus 8 plus 3? Minus 5. What is minus 5 times 3? Minus 15. 0 minus 15? Minus 15. What is minus 15 times 3? What is 45 minus 45? 0. The last term is supposed to be 0. अब देखो, मेरे पास 4 टर्म्स थे. मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स क्यूब टर्म. कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर हियर नाउ? 3 टर्म्स. तो ये कौन सा टर्म हो जाता है? दिस बिकम्स अ कांस्टेंट, दिस बिकम्स एक्स एंड दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर. तो देखो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज नथिंग बट, सिंस द लिमिट इज 3, तो दिस विल बिकम x माइनस 3 एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15. बोलो कितने लोगों ने समझा ये? बिकॉज ये तो लिमिट है मेरे पास, लिमिट इज हियर, तो x माइनस 3, बिकॉज x टेंड्स टू 3 तो x माइनस 3 हो गया. एंड यहाँ पे 4 टर्म्स थे बट लास्ट टर्म निकल गया, तो दिस बिकम्स योर कांस्टेंट टर्म, दिस बिकम्स योर x टर्म एंड दिस बिकम्स योर x स्क्वायर टर्म. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? तो ये मेरा न्यूमरेटर है. अब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज हम डायरेक्टली कर सकते हैं. सो इफ आई सॉल्व इट हियर, देखो माय क्वेश्चन विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 3, देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 अपॉन, अच्छा चलो इसको फैक्टर कैसे करेंगे बताओ, क्या रहेगा? 2x स्क्वायर, बोलो क्या रहेगा? माइनस 6x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9. And now when I simplify this, this will become x tends to 3. Numerator is not a problem. मैंने numerator को ऐसे लिख दिया डायरेक्ट. If I talk about the denominator, this will become 2x. ये x minus 3 हो जाएगा plus 3x minus 3. Guys, is there anything that is getting cancelled? x minus 3 cancel हो गया.
कैन यू टेल मी वॉट एवर इज लेफ्ट गाइस? x टेंस टू 3 बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 अपॉन 2x प्लस 3। लिमिट क्या रहेगा? x टेंस टू 3, x नॉट इक्वल टू 3 एंड x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। बोलो x का वैल्यू बोलो क्या रहेगा फिर? 9 माइनस 15 माइनस 15 अपॉन 6 प्लस 3। बोलो फाइनल क्या रहेगा? माइनस 21 अपॉन, रेड्यूस होगा क्या? क्या होगा? वेरी गुड। अब यही डायरेक्ट करो, यू गेट माइनस 7/3। You will get minus 7/3. So you have to be very careful as to what you are doing, how you are doing, and क्या सब्सिट्यूट करना है। You will get the same answer provided लॉपिटल्स यूज़ कर सकते कि नहीं। हमेशा यूज़ करेंगे ना, कभी कभी क्या होता है नॉर्मल मेथड जल्दी सॉल्व करता है, लॉपिटल्स को ज़्यादा टाइम लगता है। तो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। अब ये हो गया फैक्टराइज। एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स इन द टाइप फैक्टराइजेशन? सब लोग को समझ गए। टाइप 2 पे जाते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। टाइप 2 पे जाते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन का समझिए, मेरा पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। x का वैल्यू मैंने 0 डाल दिया, न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। अब दोनों ही 0 बन रहा है, रूट भी है। अब फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, तो हम करेंगे रैशनलाइज। रूट को बाहर निकालो। अगर मैंने बोला रूट को बाहर निकालो तो कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बिकम, ये देखो, दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x इंटू root of 1 plus x plus 1. How many of you have not understood this? Has everybody understood this? Has everybody understood this? Yes. बोलो इसके बाद क्या करेंगे? What will the numerator become? So this will become is equal to limit x tends to 1. 0, sorry. X tends to 0. This will become 1 plus x minus 1 upon x into रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये निकल गया 1, ये निकल गया 1। आई एम लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये निकल गया x, निकल गया x। एंड नाउ आई कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, दिस विल बिकम 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1। रीजन आएगा x टेंड्स टू 0, x is not equal to 0. Guys, what is the answer? 1/2. 1/2. Perfect. Okay, how many of you have not understood this? क्या किया मैंने? सिर्फ रैशनलाइज, दैट्स इट। रैशनलाइज किया, रूट निकल गया, x अपने आप निकल गया, और मुझे पता चल गया अभी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट बिकमिंग 0. Denominator should not be 0. You have to make sure that the denominator is not equal to 0. Next. Now, समझो मेरा क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन x माइनस 4. कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ? बोलो, अरे बोलो। 3 माइनस, हाँ
3 plus 5 plus x, 3 plus root 5 plus x. This will become limit x tends to 4. This will become 9 minus 5 plus x upon x minus 4, 3 plus root of 5 plus x is equal to limit x tends to 4. This will become 9 minus 5. कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 minus x. नीचे है x minus 4, 3 plus root of 5 plus x. अब देखो, ये निकल गया -1. And this will become limit x tends to 4 -1 upon 3 plus root of 5 plus x. अब देखो ये रीजन आएगा x tends to 4, x not equal to 4, x minus 4 is not equal to 0. गाइस अगर मैंने नीचे x के जगह 4 डाल दिया, what will the final answer be? -1 by what? 9. 9 का root is 3 and 3 plus 3 becomes 6. Has everybody understood this? अब देखो रूट आ गया, रूट के आगे नंबर, रूट के पीछे नंबर, दोनों दो टाइप कर लिया. तो देयर आर सर्टेन सम जहाँ पे न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है. So now I want you guys to tell me how will I approach with this question. Say for example the question is this: limit L is equal to limit x tends to a root of a plus 2x minus root 3x upon root of 3 plus x minus 2 root x a not equal to 0. अब सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको रैशनलाइज करना है? Should I rationalize the numerator or the denominator? Denominator. I have to rationalize both. I will have to rationalize both. So you have to be very careful. अब देखो how I am going to write. देखो हाँ, ध्यान से देखो, एक ही स्टेप में करना है, तो you have to be very careful. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a. पहले तुम लोगों ने बोला कि we'll rationalize the denominator. तो let's start with the denominator. Root of 3a plus x minus 2 root x. You guys said let's rationalize the denominator. तो हो जाएगा root of 3a plus x plus 2 root x. Any doubts here? And multiply and divide उससे ही किया था मैंने. Root of 3a plus x plus 2 root x. Okay, how many of you have not understood this? अरे has everybody understood this? तो ये मैंने multiply and divide कर दिया. Now let's address the numerator. Root of a plus 2x minus root 3x. I will multiply and divide by Any doubts here? अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? It becomes easier for you to directly multiply. इसका और इसका ना कोई रिलेशन नहीं है, ना ये जीरो बनेगा और सिंप्लीफाई के बाद ना ये जीरो बनेगा. सो मेक श्योर डिनोमिनेटर से जिससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे ना, इसको दूर रखना, और न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड पार्ट जस्ट कीप इट हाइड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया, कैन यू टेल मी दोनों को मल्टीप्लाई करके व्हाट विल आई गेट द आंसर एज? दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ a प्लस 2x माइनस 3x, एंड इसको ऐसे लिखेंगे रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट x द होल अपॉन
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा गाइस बताओ? 3a + x माइनस 2x, और कौन सा टर्म बच गया? रूट ऑफ a + 2x + √3x। क्या हो गया? 4x 4x 4x। If I simplify the numerator, guys, can anyone tell me what will I get? What will this become? a minus x into क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 3a + x + 2√x अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a minus 3x। कैन आई टेक 3 कॉमन तो क्या हो जाएगा? a minus x। अंदर क्या बचेगा बताओ? रूट ऑफ a + 2x + √3x। Is there anything that is left or getting cancelled? ये देखो a minus x निकल गया। Now what we are going to do is we are directly going to substitute the value। बोलो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, बोलो क्या बच जाएगा यहाँ पे? √4x + 2√x अपॉन, नीचे बोलो क्या हो जाएगा? हाँ अभी तो सब्स्टिट्यूट नहीं किया ना। अच्छा रूट, अरे सॉरी we substitute करेंगे वैल्यू। So if I substitute the value here, what will I get? Root of 4a plus upon √3a plus √3a. See what will I get? 2√a plus 2√a upon √3a। रूट ए सबको रूट है। √3a बोलना बेटा क्या हो गया? हाँ 3 है ना बाहर, अच्छा 3 भी है तो 3 आएगा बाहर। 3 इंटू √3a + √3a, दिस विल बिकम 4√a अपॉन 6√3√a। इज दिस करेक्ट? बोलो फाइनल आंसर क्या रहेगा? 2/2। ये निकल गया सबसे पहले रूट ए 2 × 2 2 × 3, तो आंसर इज 2/3√3। हो गया। ये हमने कर दिया रैशनलाइज, ये हमने कर दिया फैक्टराइज। एंड रैशनलाइजिंग फैक्टराइज में कुछ नहीं करना है। आई हैव यूज्ड द बेसिक रूल्स दैट वी आर यूजिंग फॉर क्वाड्रेटिक factorization। The basic rules that is required for factorization, that is you multiply and divide by the conjugate term। I repeat again, you multiply and divide by the conjugate term। Now अब आता है a very important formula, limit x tends to a, x raised to power minus a raised to the same power upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1। I repeat again, x raised to power minus a raised to the same power upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1। x raised to power minus a raised to the same power upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1। I'll give you a simple example for this। समझो मुझे बोला है x टेंड्स टू 2 ले लेते, एग्जाम्पल देता हूँ। समझो जैसे है x रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 2, सेम है। तो माई डायरेक्ट आंसर वुड बी 5 इंटू 2 रेज टू 5 माइनस 1, which is 5 into 2 raised to 4, which is 5 times 32, which is, has everybody understood this? हाँ क्या हो गया बेटा? 5 times 16, अच्छा 16 है 32 नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। 5 times 16 which is 80। तो द फॉर्मूला इज x रेज टू पावर माइनस a रेज टू द सेम पावर, तो दोनों का ना पावर सेम होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल लेंगे, अगर से फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस एग्जाम्पल कि इफ द क्वेश्चन इज, देखो
L is equal to limit x tends to 1 x raised to m minus 1 upon x minus 1. Can you tell me इसका आंसर क्या रहेगा? Is it same? ध्यान से देखो, इज इट सेम, यस और नो? पक्का? इसमें पावर है क्या? है, बिकॉज 1 रेज टू एनीथिंग इज 1. बोलो क्या हो जाएगा? m टाइम्स 1 रेज टू m माइनस 1 विच इज व्हाट? m. सब लोगों को समझाइए. सो रिमेंबर x रेज टू पावर माइनस a रेज टू द सेम पावर अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू पावर इंटू a raised to power minus 1. देखो, पावर इंटू a raised to power minus 1. Has everybody understood this? अब समझो, मुझे एक क्वेश्चन ऐसा दिया, L is equal to limit x tends to 3 x raised to 5 minus 243 upon x square minus 9. ये क्वेश्चन दिया, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू मी. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 3. फॉर माई अंडरस्टैंडिंग x रेज टू 5 माइनस 3 रेज टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेते हैं. अब ये परफेक्ट सेटअप हो गया. प्रॉब्लम क्या पता है? माई फॉर्मूला इज दैट x रेज टू पावर माइनस a रेज टू पावर अपॉन x माइनस a. दिस इज द पावर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, can you tell me what is, acha, forget the denominator, can you tell me what is missing in the numerator? I mean, what is missing for the numerator to become the formula? x minus a, x plus a, x plus a is missing. फॉर्मूला देखो ना, क्या है? प्लस नहीं है कहीं पे भी. प्लस दिखा क्या किसी को? क्या मिसिंग है? न्यूमरेटर दिया है, बट न्यूमरेटर के साथ क्या मिसिंग है? x रेज टू पावर माइनस a रेज टू द सेम पावर दिया है, बट व्हाट इज मिसिंग? x रेज टू पावर माइनस a रेज टू पावर दिया है, बट ये बनने के लिए क्या मिसिंग है? x माइनस a. तो यहां पे इसमें भी x माइनस a मिसिंग है, यहां इस डिनोमिनेटर में भी x माइनस a मिसिंग है. सो सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. देखो ध्यान से, इसको लिख दिया x रेज टू 5 माइनस 3 रेज टू 5 और डिनोमिनेटर में भी ले लिया x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. नाउ कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज इन द न्यूमरेटर, व्हाट इज मिसिंग? इन द न्यूमरेटर व्हाट इज मिसिंग? x minus 3. And guys, in the denominator also what is missing? x minus 3. क्या ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया? क्या ये फॉर्मूला बन गया? What I have done is I have multiplied and divided by, I have divided the numerator and denominator by x minus 3. Now tell me what will the numerator become? 5 times 3 raised to 4. 5 times 3 raised to 4. और नीचे क्या बनेगा? 2 times 3 raised to 1. 3 1 1 is equal to, बोलो, ये देखो, ये क्यूब बन गया और ये निकल गया. What is 3 cube times 5? 27 times 5. बोलो 135. श्योर? बोलो 27 times 5 कितना होता है? 135. अपॉन, सो x रेज टू पावर माइनस a रेज टू द सेम पावर अपॉन x माइनस a. और यहाँ पे whenever use the formula ना, यहाँ पे एक रीजन लिख देंगे. Since x tends, डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज करना वो, since x tends to a, x not equal to a, and the formula is limit x tends to a, x raised to power minus a raised to same power upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. So obviously for entrances you don't need to write this, but for your understanding you understand कि क्या है ये. रीज़न ये है कि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है कि x raised to power minus a raised to same power upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. Anybody has any doubts? सब लोगों को समझ गया ये. So this is your third type where we understand कि x raised to power minus a raised to same power upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. We started with rationalize, then we did factorize,
then we did x raised to limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. अब if we go on to infinity, say for example x tending to infinity. Now this is the, if I have to tell you कि this is the safest thing where इसका एक ही मेथड है, divide by highest power of x present in the denominator. बस क्वेश्चन लिखने से पहले मैंने तुम लोगों को बता दिया कि डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, थ्रू आउट द सम यू आर सपोज टू डिवाइड बाय दैट. तो अगर डिनोमिनेटर में x का पावर 5 है, यू आर सपोज टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज़ टू 5. अगर नीचे x क्यूब है तो डिवाइड बाय x क्यूब, अगर नीचे x है तो डिवाइड बाय x. कोई भी पावर रह सकता है. सो स्ट्रेस नहीं लेना कि क्या पावर है, कुछ भी रह सकता है, अपने को कोई चिंता नहीं है उसका. सबसे पहले समझो कि मैंने सबसे पहले ले लिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x minus 3 upon 2x plus 7. 4x minus 3 upon 2x plus 7. अच्छा, can anyone tell me what is the highest power of x in the denominator? 1. तो I'll divide throughout by what? x. तो I'll divide the numerator and denominator by x. तो देखो क्या हो जाएगा. Limit x tends to infinity 4x by x minus 3 by x upon 2x by x plus 7 by x. ये निकल गया. गाइस क्या बचा? 4 minus 3 by x. What is x का वैल्यू? What is 1 upon infinity? 0. 2 plus, which is what? 2. That's it. Infinity दिखा, highest power of x present in denominator. I repeat again. Infinity दिखा, highest power of x present in denominator. Anybody has any doubts here? तो नहीं आएगा ना आंसर, इन्फिनिटी आएगा आंसर. आंसर कुछ भी आ सकता है. मुझे क्या रूल पता है? यू आर सपोज टू डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर. एक्स नहीं ना डिनोमिनेटर में, तो समझ यहाँ पे सिर्फ 2 है. व्हाट इज 4 इंटू इन्फिनिटी? इन्फिनिटी. तो आंसर इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी. सो डजंट मैटर व्हाट इज गिवन, you have to understand that you divide by highest power of x that is present in the denominator. अभी समझो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया. अब इसका शॉर्टकट क्या है पता है क्या? मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ. क्या दोनों का पावर सेम है? देखना, इसका पावर क्या है? x रेज़ टू 1. इसका पावर क्या है? x रेज़ टू 1. सीधा उसका कोएफिशिएंट लिख देने का. दैट इज 4/2. व्हाट इज 4/2? 2. तो अगर इक्वल अपॉन इक्वल है तो आंसर इज द कोएफिशिएंट. यहाँ पे भी इसका देखो ना, इसका कोएफिशिएंट, इसका पावर क्या है? 1. इसका पावर, तो इक्वल अपॉन इक्वल, ऊपर भी सेम पावर है, नीचे भी सेम पावर है, तो सीधा उसका कोएफिशिएंट चिपका दो. दिस इज द शॉर्टकट. दैट इज 4/2. अब व्हाट विल हैपन, अगर ऊपर छोटा पावर है और नीचे बड़ा पावर है, स्मॉल अपॉन बिग. समझो ऊपर छोटा पावर है और नीचे बड़ा पावर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ऊपर छोटा पावर है और नीचे बड़ा पावर है. एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 प्लस 3. क्या ऊपर छोटा पावर है? यस. क्या नीचे बड़ा पावर है? यस. देखो इक्वल अपॉन इक्वल कर दिया. अब छोटा पावर अपन बड़ा पावर, वो छोड़ो. व्हाट एम आई सपोज टू डिवाइड बाय? एक्स रेज़ टू 4. गाइस अगर मैंने डिवाइड कर दिया एक्स रेज़ टू 4 से, कैन यू टेल मी दिस विल बिकम व्हाट? एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज़ टू 4. नेक्स्ट बोलो. स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 प्लस 3 अपॉन एक्स रेज़ टू 4. अब देखो ये पूरा निकल गया, ये बचा गया, ये चला गया, यहाँ पे स्क्वायर बन गया. Now let's check. Guys देखो, I'll just write it again. Limit x tends to infinity 1 upon x plus 6 upon x square plus 1 upon x raised to 4 upon 1 plus 3 upon x raised to 4. Let's check. What is the first term becoming?
0 प्लस 0 अपॉन 1 अपॉन 0 विच इज 0. तो स्मॉल अपॉन बिग रहेगा. अगर स्मॉल अपॉन बिग इन्फिनिटी में स्मॉल अपॉन बिग रहेगा तो आंसर हमेशा 0 रहेगा. क्या बोला मैंने? स्मॉल अपॉन बिग रहेगा तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0. इक्वल रहेगा तो उनका कोएफिशिएंट लिख दो. कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर, कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर, बिकॉज सेम है तो कोएफिशिएंट रहेगा. एंड अगर स्मॉल अपॉन बिग रहेगा तो आंसर 0 रहेगा. अब इसको उल्टा कर लेते हैं. उल्टा का मतलब होता है, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जब बिग अपॉन स्मॉल रहेगा. L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7. गाइस किससे डिवाइड करेंगे? डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से. चलो एक काम करते हैं, ये स्टेप में ना डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं. So this will become limit x tends to infinity 3x minus 1 plus 1 by x square upon 1 minus 1 by x plus 7 by x square. What will the first term become? Infinity. And infinity upon 1 is going to be infinity. तो याद रखो, equal upon equal is equal to coefficient upon coefficient. Small upon big is equal to 0. Big upon small is equal to infinity. Straightforward. ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? So this is the first part before we start the trigonometric part. So what we have done is we have done rationalize, we have done factorize, we have done x raised to power minus a raised to same power upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. and बाद में we ended the lecture with infinity, जहाँ पे equal upon equal रहेगा तो सिर्फ कोएफिशिएंट लिख दो दोनों का. स्मॉल अपॉन बिग रहेगा तो आंसर हमेशा 0 होगा. और अगर बिग अपॉन स्मॉल रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा मेरा वैल्यू? इट इज़ गोइंग टू बी इन्फिनिटी. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? ठीक है, चलो, विल स्टॉप फॉर टुडे सेशन.